20 to 25 marks that are just waiting for you. पहले रोल ऑफ PYQs देखते हैं, फिर देखेंगे कि हाउ आई रीड पॉलिटी। इंडिया इज अ सॉवरेन डेमोक्रेसी। सेंटर का जब मन करेगा स्टेट से पावर हटा लेगा। देयर आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल हु सैट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शुड बी रेड टुगेदर। ये जो चैप्टर है, फॉरेन पॉलिसी, यू कैन स्किप। National Commission to Review Working of Constitution, you can skip. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivin. This is the evidence-based video for the polity strategy for prelims 2025. अब polity की strategy सबको पता है कौन सी book पढ़नी है. But how to read this subject? How to read this subject logically to maximize your output? That is what I'll be talking about in this video. इस वीडियो में मैं आपको live demonstration देके दिखाऊंगा how I read this subject to get a proper analytical understanding, ताकि इसमें भी हमें कुछ भी ना रटना पड़े और हमें लॉजिकली समझ आए। Let's get started. सबसे पहले पॉलिटी की वेटेज की बात करते हैं। So पॉलिटी has had a decent weightage of about 15 questions. 15 questions के आसपास अगर आप लास्ट 5 years को देखो, about 15 questions have been coming. There was a blip or downtrend in 2022, but overall this 15 trend has remained. And the best part of these 15 questions is they are all solvable. At least 10 of them are solvable, right? So these are 20 to 25 marks that are just waiting for you in the prelims. But we have to utilize the full potential of the book that we have to read to ensure कि 20 से 25 marks हम ले पाएं. अब what are the sources for polity? 2024 के prelims का evidence based analysis करके I can tell you that 82% of the questions came from M. Lakshmikant sir की book. अब ये जो बुक है, एवरीबडी रीड्स दिस, राइट? सबको पता है कि यही बुक पढ़नी है, बट क्या इस बुक को पढ़ने के बाद भी लोग आंसर्स ला पा रहे हैं? नहीं। एंड दिस इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि कैसे एनालिटिकली इसको पढ़ना है। अगर आप क्लास 12th की एनसीईआरटी देखोगे दैट डील्स विद पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, वहां से 6% क्वेश्चंस हैं। एंड अगर आप करंट अफेयर्स देखोगे तो देयर आर 12% क्वेश्चंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत कम्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते और करंट अफेयर्स को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ना खुद से मुश्किल है, तो इसी वीडियो में आपकी वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। अब पहले रोल ऑफ PYQs देखते हैं, फिर देखेंगे कि हाउ आई रीड पॉलिटी। यहां देखते हैं क्वेश्चन ऑफ 2024, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन राइट टू प्राइवेसी। 2021 राइट टू प्राइवेसी, 2019 राइट टू प्राइवेसी, 2018 सॉरी राइट टू प्राइवेसी। So PYQ repeat तो काफी है, right? This is a direct repeat. You will even see thematic repeats here, right? Money bill in the parliament, money bill, money bill. 2013, 18, 2024. So things do get repeated in polity also, right? तो PYQs छोड़ के हम नहीं जा सकते. And you will see a analytical analysis even in these PYQs. देखते हैं कैसे. Let us understand through 2 topics. मैं आपको 2 topics live understand करके दिखाता हूं. And I'll tell you how I read this subject. पहले हम देखते हैं the distribution or the division between लोक सभा एंड राज्यसभा, how that happens, and इसको आप कैसे लॉजिकली पढ़ सकते हो। देखो ये चैप्टर्स आपने तो पढ़े ही होंगे। पार्लियामेंट everybody must have read at least at some point. What do we know लोक सभा? लोक सभा is the house of the people, and people here are directly elected. राज्यसभा की अगर मैं बात करूं, राज्यसभा is council of states and this is indirect election. Actually the state legislative assemblies are sending people to Rajya Sabha. ये बात हमें पता है। What are the implications of this? इस चीज को थोड़ा सा साइड करके let us think and understand how these things happen. What is a money bill? Money bill के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन भी आया है। Money bill is something where the government is seeking the permission to spend money. The executive is seeking permission to spend money from the legislative or from the legislature. अब ऐसा क्यों है? India is a sovereign democracy. Democracy means rule of the people. Demos meaning people, crazy meaning rule. Democracy means rule of the people. So people are the ultimate supreme in any democracy. किसी भी डेमोक्रेसी में लोग हैं जो अल्टीमेट सुप्रीम है। अब ये पैसा गवर्नमेंट के पास कैसे आया? वेयर डिड गवर्नमेंट गेट दिस मनी? एनी मनी दैट द गवर्नमेंट गेट्स इज कमिंग फ्रॉम टैक्स ऑफ द पीपल,
People pay tax to the government, pay a tribute to the government, and they get this tax money. Government now has to spend this tax money. People are the ultimate supreme. These are the actual rulers. Government is merely a representative of these people. Government is merely going to represent these people. अब गवर्नमेंट को अगर टैक्स मनी सिलेक्ट करना है, पीपल आर सुप्रीम, गवर्नमेंट इज अ सर्वेंट ऑफ दिस पीपल. तो अगर मेरे सर्वेंट को या मेरी गवर्नमेंट को, डोंट टेक सर्वेंट द रॉन्ग वे, सर्वेंट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सर्विसेज. गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पीपल. इफ दिस गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड money that has been given by the people who are the master of this government, it has to take permission from the people directly. इसके साथ I'll also connect a slogan to you. No taxation without representation. ये वर्ड आपने मॉडर्न हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में पक्का पढ़ा होगा. This also embodies this principle. If you have to take tax from me, spend my money, and you will decide how my money gets spent, you cannot do this without giving me representation. No taxation without representation. अगर आपको पता है ये किसने बोला था, write it in the comments. अब with this idea, what do you think will happen when government wants to either collect money from the people, कि कितना टैक्स कलेक्ट करें, or when government wants to spend this money. When government wants to spend this money, government wants the permission of their masters, who are the people. So in these two houses, where are the people directly being represented? They are being represented in the Lok Sabha. Therefore, money bills are therefore put in the Lok Sabha. Now, this sort of logical understanding is what we need. इससे ही और relate करते हैं. Rajya Sabha is the council of states. It is there to protect the interest of the state at the central legislature level. कि states का जो interest है, वो central government उसको overcome ना कर ले. It is the guarding ऑर्गन ऑफ फेडरलिज्म इन द कंट्री. बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज की, जिसके लिए मेनली हम ये एग्जाम दे रहे हैं. ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज. ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. इन ऑफिसर्स के हाउ आर दीज ऑफिसर्स वर्किंग देखते हैं. दीज ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे वर्क इन द स्टेट गवर्नमेंट. आपको पता होगा दैट इन ऑल 3 सर्विसेज अ कार्डर इज असाइंड. और जो कार्डर, आपको जो भी स्टेट का कार्डर मिलता है, लेट्स से आईएएस ऑफ मध्य प्रदेश कार्डर, मोस्ट ऑफ योर लाइफ विल बी स्पेंट इन मध्य प्रदेश वर्किंग फॉर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. अपॉइंट किसने किया? सेंटर ने. वर्क कहां कर रहे हो? स्टेट में. लेट्स से स्टेट हैज सम प्रॉब्लम विद एन आईएएस ऑफिसर, दे कैन मियरली ट्रांसफर हिम. इट इज ओनली द सेंटर हु हैज द अल्टीमेट डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर दिस आईएएस ऑफिसर. तो अब देखो ये क्या कह रहा है सेंटर स्टेट्स को. सेंटर स्टेट्स को कह रहा है कि आई विल अपॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स इन योर स्टेट. आई विल अपॉइंट, आई विल कंट्रोल देम, दे विल वर्क फॉर यू. इज दिस नॉट टेकिंग अवे द राइट ऑफ द स्टेट्स अ लिटिल बिट? स्टेट्स का अपने ही सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरी को डिसिप्लिन करने का राइट नहीं है. सारा और मेजर राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. नाउ दिस बिकम्स अ चैलेंज टू फेडरलिज्म. which is the organ that guards federalism in the country? It is the Rajya Sabha. So new all India services always will get created in the Rajya Sabha. Don't just have to read polity, we have to understand polity. यहीं से कनेक्ट करते हैं इशू ऑफ फेडरलिज्म. ये क्वेश्चन भी आया था इन द प्रीलिम्स वंस, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. अब एक तरीका तो है कि इसको रट लो, दूसरा है कि हम सोचते हैं 2 गवर्नमेंट्स तो होंगी फेडरलिज्म में, सेंटर और स्टेट, ये तो हमें पता है. अब मान लो मैं आपको कहता कि यार आप ना एक काम करो, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ensure that both of them get equal rights or at least rights to the point where none of these governments feel cheated. अब इस प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हैं. If obviously this government will be superior, it is the bigger government, this is the smaller government. If all the powers of the state government are coming from the center will take away those powers at any time. सेंटर का जब मन करेगा स्टेट से पावर हटा लेगा and state will not work, फेडरलिज्म डिफीट हो जाएगा. तो सबसे पहले the place where both these people derive their power has to be the same, which is a constitution. अब अभी के लिए इसको आगे समझने के लिए आप ये मानो कि सेंटर का तो यही इंटरेस्ट है कि वो स्टेट से पावर लेना चाहता है, वो स्टेट्स को पावर नहीं देना चाहता. देखते हैं क्या होगा. लेट्स जस्ट अज्यूम, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल, बट लेट्स जस्ट अज्यूम दैट. अब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 तरह की कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं. देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन.
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में वॉट एवर लॉ द सेंटर मेक्स बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो डिफरेंस. सो सेंटर सेज आई एम पासिंग अ लॉ, सेंटर वांट्स टू टेक अवे पावर. सेंटर सेज आई एम पासिंग अ लॉ, मैं एक लॉ पास कर रहा हूं, कल से कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी. दिस पावर इज गॉन, दिस फेडरलिज्म गेट्स डिफीटेड. देयरफॉर इन द idea of federalism, an essential feature is that one, they must derive their power from the same place, which is the constitution. This constitution must be written in nature. अब देखते हैं, सेंटर wants to take away power. आपने सेंटर को कहा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन है. सेंटर कहता है कोई बात नहीं, आई विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. मेरे पास ही राइट्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के, मैं अमेंड कर दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को. इफ आई अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ सेंटर अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल टेक अवे द राइट्स. सेंटर अगले दिन एक अमेंडमेंट लाएगा और कहेगा वी आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू से देयर विल बी नो स्टेट गवर्नमेंट. फेडरलिज्म चला गया. सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी देयर, हैज टू बी रिटन एंड हैज टू बी रिजिड. रिजिड एट लीस्ट इन द प्लेसेस वेयर दिस फेडरलिज्म इज मेंशन्ड. जहां जहां इस कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात मेंशन्ड है कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, वहां पर अमेंडमेंट इजी नहीं होनी चाहिए. अब ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन at least there are some areas where even 50% of the states have to ratify if you have to have an amendment. अब वो कौन से एरियाज हैं ये आप बताओगे मुझे. आगे देखते हैं. Let's say all of this is there. आपने ये सारी चीजें अज्यूम कर ली. अब सेंटर कहता है I will still amend the constitution, not take your consent and take away the state government. फिर से प्रॉब्लम होगी. अब स्टेट गवर्नमेंट करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या करे स्टेट गवर्नमेंट. अब देयर इज नो प्लेस वेयर द स्टेट गवर्नमेंट कैन गो, सारी पावर सेंटर के पास है. सो देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट प्लेस वेयर इफ अ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन दीज टू इट कैन बी सॉल्व्ड. सो अनदर एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. कि अगर मान लो इन सारे फीचर्स के बाद भी कोई डिस्प्यूट आया तो दोनों एक इंडिपेंडेंट जगह पर जाएंगे जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा. दिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी विल देन इंश्योर फेडरलिज्म इन इंडिया. These are the essential features of federalism and this is how you understand it. अब इसके नोट्स कैसे बनते हैं? नोट्स बनते हैं कंसाइज तरीके से. F is equal to, देखो I am a doctor by profession, that's where my, at least not by profession but at least by training, and I think scientifically, so even my notes are made like that. How would I write this in my notes? Federalism is equal to 2 meaning there are 2 levels, must be at least 2 levels of government. 3 भी हो सकते हैं बट 2 नहीं है तो फेडरलिज्म है ही नहीं. Deriving their power from constitution, इसको मैंने बोला constitution, which must be written, which must be rigid, at least in the places where constitution is there, at least in the places where federalism is there, and there must be an independent judiciary. नोट्स में मैं बस इतना लिखूंगा बट एक्सप्लेनेशन ये है. So think about the topics we are studying, right? Try to link them in our daily lives. Polity की बेस्ट बात क्या है देखो यार, ह्यूमन मेड है, right? There are very very intelligent people who sat in the constituent assembly and made our constitution. उन्होंने definitely कुछ सोचा होगा. We can't read all of those constituent assembly debates, but at least we can apply logic when we are reading polity. And this is fairly important. अब आते हैं how we have to read this book. Everyone knows this is the book you have to read, but इस book की क्या अच्छी बातें हैं कि इसमें बढ़िया प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, एंड इट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्स द सिलेबस. 80% क्वेश्चंस लाइक वी सॉ आर फ्रॉम दिस बुक, बट देयर आर आल्सो प्रॉब्लम्स हियर. फर्स्ट प्रॉब्लम इज थिंग्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली. दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे, दे आर ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली सो टू स्पीक, बट फॉर अ स्टूडेंट फॉर यूपीएससी देयर इज अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल. इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, that you should read with modern history, और वो modern history की strategy में already हम discuss कर चुके हैं कि उसको कैसे पढ़ना है. इसकी एक specific sequence है. You need to club the similar topics. Similar topics club करो. अगर आप चीफ मिनिस्टर पढ़ रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साथ में पढ़ो. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर should be read together. Parliament and state legislature should be read together. Supreme Court and High Court should be read together. Right? Second, this book is largely theoretical, but इसकी अच्छी बात क्या है, there is another book called Objective Polity, again by the same author M. Lakshmikant sir. और अगर आप ये कर लोगे, if you do this, it has chapter wise MCQs.
चैप्टर 1 के एमसीक्यूज, चैप्टर 2 के एमसीक्यूज. सो इट्स ऑलवेज बेटर आप यहां से एक चैप्टर पढ़ो, यू रीड द चैप्टर एंड यू सॉल्व द एमसीक्यूज डायरेक्टली. साथ में ही आप एमसीक्यूज पढ़ लो रादर देन डूइंग एमसीक्यूज एट द एंड. और चैप्टर वाइज अवेलेबल है, इसी बुक से बने हैं, मेक्स अ वेरी इजी वे ऑफ रिविजन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी आर रीडिंग इन अ टेस्ट फॉर्मेट. तो ये बुक आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि ये बुक आप साथ में ले लो. वट एवर चैप्टर यू रीड फ्रॉम हियर, यू रीड दिस ऑल्सो साथ में. अब नॉट ऑल टॉपिक्स नीड टू बी रेड. सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है सब कुछ पढ़ने की जरूरत? बिकॉज देर आर सम टॉपिक्स दैट आर ओनली देयर फॉर सम मीन्स थिंग्स एंड सम टॉपिक्स वेयर क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग. So we need a specific way to read this book. उसकी बात करते हैं, a correct sequence to read this book. I have made a complete sequence here and I'll be uploading this PDF also. And I've made a sequence here to understand how you can read this book. सबसे पहले historical background वाला chapter है to be read with modern history. Making of the constitution again to be read with modern history. Citizenship वाला chapter है, इस sequence में नहीं पढ़ना, बस इन chapters के बाद, these are slightly special chapters तो इनके बारे में बता रहा हूँ. Citizenship वाला chapter है, ओनली स्किम थ्रू इट. यहां पर जो डेट्स हैं यू कैन स्किप दिस. यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? वेज ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप, लूजिंग सिटीजनशिप, रीड अबाउट द असम अकॉर्ड एंड रीड अबाउट PIOs, NRIs, OCIs एक्सेट्रा. OCIs आर गॉन नाउ बट यू शुड रीड अबाउट दैट. अब ये करेंगे सीक्वेंस ऑफ दिस बुक टू बी रेड. देखो, we will start with chapter 3, salient features of the constitution. ये constitution में क्या क्या है, right? From there we'll go on to, अब यहां पर ये बताएगा that India is a parliamentary system, India is a federal system. तो यहीं पे ही पढ़ लेंगे chapter 12 और 13, parliamentary and federal system. फिर आएंगे chapter 4 पे and we'll read preamble of the constitution. फिर पढ़ेंगे fundamental rights, DPSPs, fundamental duties, amendments, basic structure. This is group 1 that we have to read. आगे चलते हैं. सेकेंड ग्रुप स्टार्ट करेंगे विद प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट के साथ ही वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के साथ हम गवर्नर भी पढ़ लेंगे, बिकॉज लॉट ऑफ द फीचर्स आर सिमिलर. सेम बातें रिपीट हो रही होंगी. तो बेस्ट तरीका क्या है? एक तो रीड देम टुगेदर और एक ही जगह पे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिख लो ताकि रिवीजन में बार बार ना पढ़ना पड़े. जस्ट राइट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन वन प्लेस. कि प्रेसिडेंट के चैप्टर में ही यू कैन राइट कि अच्छा यार गवर्नर में ये चीज डिफरेंट थी. प्राइम मिनिस्टर के साथ देन वील रीड चीफ मिनिस्टर. सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ वील रीड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब ये चैप्टर नंबर्स आपको उल्टे सीधे दिख रहे होंगे बट इट मेक्स सेंस टू स्टडी दीज थिंग्स टुगेदर. आगे देखते हैं. पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज इज पार्ट ऑफ ग्रुप 3, ऑब्वियसली शुड बी रेड टुगेदर. इट इज अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो साथ में पढ़ना चाहिए. देन ये जुडिशरी वाले चैप्टर्स हैं. रीड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टुगेदर. Then read tribunals and subordinate courts so that you get a comprehensive understanding of judiciary. From here go to judicial review, judicial activism and PIL. High court में भी PILs accept होती हैं, High court में भी judicial activism की बात होती है, High court में भी judicial review होता है. तो first read High court with Supreme Court, then go to these chapters. Next group is understanding our basic legislature. So parliament, parliamentary committees, state legislature, parliamentary group, parliamentary forum and cabinet committees. Read all of this together. ये सारे चैप्टर्स साथ में पढ़ें बिकॉज अगेन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेचर इन वन प्लेस. आगे चलते हैं. दिस देन टॉक्स अबाउट फेडरलिज्म. अब फेडरलिज्म को डिटेल में देखना है. तो रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द स्टेट्स एंड हाउ डज दिस रिलेशनशिप चेंज व्हेन एन इमरजेंसी इज इम्पोज्ड. रीड दिस टुगेदर. मेक्स मोर सेंस. एंड ये अच्छी बात यह है कि ये ऑर्गेनाइज्ड भी साथ में. आगे चलते हैं. यूनियन टेरिटरीज वाला चैप्टर, चैप्टर 40 विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. इसमें बताया है कि इंडिया की जो शुरू के आर्टिकल्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 उनकी बात की है. यहीं से हम समझें यूनियन टेरिटरीज के लिए स्पेशल प्रोविजन. यहीं से हम समझें कुछ अलग टाइप की टेरिटरीज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज. दिस शुड बी रेड टुगेदर. अब These are then our constitutional bodies. अब constitutional bodies को पढ़ने का बेस्ट तरीका है that you make a table for them, right? And मेरी बहुत strong recommendation है आपको, किसी और का बनाया हुआ टेबल मत यूज करना. Read these chapters once. इनसे questions आते हैं. These are very doable. अगर आप किसी और का टेबल बनाया हुआ पढ़ोगे, it is very likely that you will falter. ठीक है, खुद बनाओ, खुद पढ़ो और खुद बनाओ.
Read all these bodies together. Election Commission, UPSC, State Public Service Commission, Finance Commission, and so on. They are in a sequence. Read all of them together and make your own table of these bodies. How does the appointment happen? How many members are there? Is there reappointment allowed? How does the removal happen? What is the article that gives it power? Etc. etc. Then we come to non-constitutional bodies. Attorney General, Advocate General, Niti Aayog, NHRC, SHRC, etc. Again to be read together and make your own table. Effort लगेगा, but अगर अपना टेबल बनाओगे तो ज्यादा ही याद रहेगा. किसी और का टेबल अगर बोरो कर लोगे, you will never be able to put it together in the way that we are supposed to. Last, NIA and NDMA. Continuing with that non-constitutional bodies, you can read this. अब आते हैं ग्रुप 9 पे. This chapter is fairly important this year. These groups are fairly important this year because the elections happened last year, right? तो अब इलेक्शन रिलेटेड चीजें, ऑल्दो लास्ट ईयर भी इलेक्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए थे, इस साल भी आ सकते हैं. दिल्ली में भी अभी इलेक्शन हुआ है. सो पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, इलेक्शन लॉज, एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रोबेबली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. प्रेशर ग्रुप्स एक्सेट्रा. ये जो चैप्टर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी यू कैन स्किप. नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन स्किप. वोटिंग बिहेवियर यू कैन स्किप. प्रेशर ग्रुप्स जस्ट स्किम थ्रू, यहां तक खत्म कर सकते हो, राइट? अब ये तो हुई लक्ष्मीकांत की बात. देर आर ऑल्सो क्वेश्चन नाउ दैट आर कमिंग फ्रॉम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स. ये भी बात हमने देखी थी. पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स में ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ स्टेट? अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी. ऑल्दो इस पे आई हैव सीन दैट अ न्यू चैप्टर हैज बीन एडेड इन लक्ष्मीकांत, बट वी नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स. जैसे मैं आपको फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, राइट? देयर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट. नाउ देयर आर टू प्लेसेस where we can get this understanding of political theory. One is this NCERT of political theory, one of the best books I have read. अगर आपको ये बुक पढ़नी है, definitely पढ़ो. It will help you understand everything. How is Indian model of secularism different from Western model? Beautifully explained here. Mains में भी 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है? But I have read this book after I have given my first attempt. First attempt में मैंने इस बुक से नहीं पढ़ा था. First attempt में मैंने वरुण सर से पढ़ा था ये. And even he gave me a beautiful explanation. First attempt में, as you know, I scored 115 in the prelims. I had a beautiful explanation of political concepts. तो सर ने अपने सारे वही political concepts दोबारा पढ़ाए हैं and he's put them on YouTube. There is a playlist. There are 4 videos. You can finish them all in one day with the PDF also made. तो आप ये यहाँ से पढ़ सकते हो. You can read political concepts वाली चीज यहाँ से. Gives you a complete holistic understanding. और मैंने सर से ही पढ़ा है and that is why I feel confident in this subject also. तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स की ये प्लेलिस्ट आप सारथी आईएएस के यूट्यूब पे देख सकते हो एंड यू कैन रीड फ्रॉम हियर. सॉल्व्स दैट. अब हाउ आर द टारगेट्स टू बी मेड? अब यहां पर क्या करेंगे हम? सबसे पहले द टारगेट्स आई विल ऑब्वियसली बी अपलोडिंग इन माय स्टेप इनिशिएटिव फ्रॉम मंडे, दैट इज टुडे. सो आज से ही हम ये टारगेट स्टार्ट कर देंगे. अब सबसे पहले वील रीड दिस बुक. हम इंडियन पॉलिटी वाली बुक पढ़ेंगे. फ्रॉम हियर वी विल ऑल्सो रीड ऑब्जेक्टिव पॉलिटी. आज हमने मान लो फर्स्ट ग्रुप के चैप्टर्स पढ़े, सेलिएंट फीचर्स पढ़ा, पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ा, फेडरल सिस्टम पढ़ा. उन्हीं के क्वेश्चंस भी आज ही कर लिए. दे विल बी इंक्लूडेड इन द टारगेट्स. PYQs I will be doing on YouTube. I've already started the PYQ series. This week I'll be covering all PYQs of geography. उसके बाद I'll be covering PYQs of polity. तो PYQs तो आप मेरे YouTube से देख सकते हो, all sorted. सर की वीडियोस हम देख सकते हैं ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स. इवन दिस विद द PDFs I'll be putting on my step group. हमारा टारगेट रहेगा that in 3 weeks we will finish our understanding of polity. 3 weeks में हम पूरा पॉलिटी खत्म कर देंगे and we are starting from today, right? So we'll follow these targets. एक चीज और स्टेप के बारे में. स्टेप में ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड इकोनॉमी, वी हैव फिनिश्ड ज्योग्राफी, वी हैव फिनिश्ड मॉडर्न हिस्ट्री. अब कई लोग हैं जिन्होंने इस ग्रुप को लेट ज्वाइन किया, उनके टारगेट्स थोड़े से मिसअलाइंड हैं. तो आज से वी आर स्टार्टिंग 2 न्यू सब्जेक्ट्स. साइंस एंड टेक के टारगेट्स मैंने जान के डिले किए थे ताकि वी कैन रीसेट आवर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे. आज से फ्रॉम मंडे दैट इज टुडे वी आर स्टार्टिंग बोथ पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक. तो अगर आपको स्टेप में वापस आना है, दिस इज अ ग्रुप वेयर वी पोस्ट डेली टारगेट्स, वी डू एक्टिव रिकॉल सेशंस, I post my voice notes here daily about what to study and how to do it. We also do all PYQs and it's a completely free initiative on Telegram. तो अगर आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है आप आज से कर सकते हो and you can realign your targets as per this. यहाँ पर हमारा टारगेट है that by April 20th we'll finish all subjects
उसके बाद we'll do phase 2 which is our second phase of revision, then we'll do phase 3 which is our last phase of revision, right? This is the idea here. तो यहां भी आप you can start again from Monday. So thank you for watching. I hope this helps, and don't just read polity, understand it well. Thank you.